प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता। Father, we come before you in the name of Jesus. पिता यीशु मसीह के नाम से आपके समीप आते हैं। We thank you for this amazing opportunity to worship you and to pray together. और इस अद्भुत मौके के लिए कि हम आराधना कर पाएँ और साथ में प्रार्थना कर पाएँ, उसके लिए धन्यवाद। We thank you for all of us who have come together. और धन्यवाद कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। Now speak to us. अभी आप हमसे बातें करें। This entire place is covered in the blood of Jesus. ये पूरी जगह यीशु के लहू से ढकी हुई है। We thank you that your spirit flows freely. हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी आत्मा सहज तरीके से चलन कर रही है। And we thank you that you're ministering revelation to each and every one of us. और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रकाशनों की सेवा टहल हर एक व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं। We thank you that your presence is here. हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है। You said where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. आपने कहा जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ। And we thank you that you are here right now. और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं। Let's everybody pray in tongues for a moment. और आइए हम कुछ क्षण के लिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति Santa grau setele manta gra. Baruch shetele mazangra do shetele menda. Baruch sheneneme jatalamanda. Baruch shekedede. Thank you, Lord. Lemanta gra. Baruch shatalamaze yaso lamanta gra. Thank you, Lord. Lemanda glazo gro shedede. Parushene minte kese kete shatala baraka zaro shetele mantagra barusheke debe palo zenemanda parushenemanda parusheke dede zaanglarangra sogra dagra. Father, receive our praise today. पिता हमारी स्तुति को आज आप ग्रहण We कीजिए। thank you for loving us so much. और हमें प्रेम करने के लिए बहुत धन्यवाद। We thank you for your great love. और आपके महान प्रेम के लिए आपका We धन्यवाद। commit the entire service into your hands. और हम पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। I want to welcome all of you. और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। And we're going to continue our sessions on prosperity. और हमारी जो समृद्धि की श्रृंखला है हम उसे सीखना जारी रखेंगे। We were learning and we are learning for this month, Exposing Poverty Part 4. और हम इस महीने सीख रहे हैं गरीबी का पर्दाफाश, उसका भाग 4। No one likes poverty. किसी को भी गरीबी पसंद नहीं है। No one likes it. और किसी को भी पसंद नहीं है। And the church has sometimes they have justified poverty. और बहुत बार कलीसिया ने गरीबी को सही साबित करके दिखाया है। They said that being humble means if you're poor, then that means you are humble before God. वो कहते हैं यदि तुम गरीब हो तो उसका मतलब ये है कि तुम परमेश्वर के सामने दीन अवस्था में हो। Then you're a humble person. तो आप एक दीन व्यक्ति हो। They said that if you are poor, then you are really humble before God. वो कहते हैं यदि तुम सचमुच गरीब हो तो ही तुम परमेश्वर के सामने नम्र गिने जाते हो। So many believers, they started fighting prosperity. They started fighting it. और इसीलिए बहुत सारे विश्वासियों ने समृद्धि के विरुद्ध, समृद्धि से उन्होंने लड़ाई की है। Because they didn't study the Bible for themselves. They just accepted whatever the preacher said. They accepted it as truth. और उन्होंने खुद से बाइबल अध्ययन करके उसे देखा नहीं है। जो भी प्रचारकों ने उन्हें बताया उन्होंने उसे सत्य करके ग्रहण कर लिया। But to tell you the truth, God does not want us to be poor. लेकिन सत्य तो ये है कि परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि हम गरीब रहे। Because one of the things is you can't be focused on fulfilling your calling if you're always thinking about bills, right? और आप अपनी बुलाहट को
पूरा नहीं कर पाएंगे यदि हमेशा हर समय आप बिलों के भुगतान के बारे में सोचते रहेंगे। So God wants to help us तो परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है so that we can fulfill God's plan. ताकि हम परमेश्वर की योजना को परिपूर्ण कर सकें। And that's why God has given me this assignment और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे यह कार्यभार दिया है that I should teach prosperity to the body of Christ. ताकि मैं मसीह की देह में समृद्धि का प्रचार करूं। Now, whenever someone wants to preach on prosperity, there is a lot of opposition. और जब कभी भी कोई समृद्धि के बारे में सिखाना चाहता है तो उसके विरुद्ध में बहुत सारे लोग उठते हैं, So, but it doesn't matter. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Because if God has called you, क्योंकि यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है then He has given you the grace to do it. उसने आपको वो करने के लिए अनुग्रह भी दिया है, So, oppositions don't matter. तो विरोधाभास से कोई फर्क नहीं पड़ता। Even the conference that we had in Nagpur, और जो कॉन्फ्रेंस हमारा नागपुर में हुआ था, the brother, the one who conducted the conference, they were the ones who prospered through these messages. और जिस भाई ने आयोजन किया था इस कॉन्फ्रेंस का, ये वही भाई लोग हैं जो इस समृद्धि के संदेश से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। They were struggling financially, both of them. और वो दोनों ही आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रहे थे They got this teaching. और उनको ये शिक्षाएं प्राप्त हुई They began to prosper. और वो समृद्ध होने लगे And through their prosperity, they began to do the conference. और उस समृद्धि के वजह से ही उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस भी किया। Many people were asking them, where are you getting the funding from? और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आखिर तुम्हें पैसा कहाँ से मिल रहा है, Because that is a very interesting topic. और ये बहुत दिलचस्प मुद्दा था। Where is the funding coming from? और ये पैसा आपको कहाँ से दिया जा रहा है। Now next month we are going to go to Ahmednagar. और अगले महीने हम लोग अहमदनगर जा रहे हैं It's even bigger. और ये उससे भी बड़ा है। Same question. और सवाल फिर से वही उठेगा, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आता है ये? There are people asking the ones that are prospered by this ministry. और लोग उनसे पूछ रहे हैं जो इस सेवकाई के अंदर समृद्ध हुए हैं। And one of my sons, he said, और एक मेरे बेटे ने ऐसा कहा, he said, you know, even before any of these bookings and all of that, all the money is in our hand. और ये सब बुकिंग होने से भी पहले सारा का सारा पैसा पहले से हमारे हाथ में था। Can you see how grace is working? क्या आप देख रहे हैं ये अनुग्रह किस रीति से काम कर रहा है? And you are here. और आप यहाँ पर हैं। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो उनके लिए होगा वो आपके लिए भी हो रहा है। Amen. Praise God. अगला कॉन्फ्रेंस आप ऑर्गेनाइज करिए। Praise God. Because this message will go all around India. और ये जो संदेश है पूरे भारतवर्ष में जाएगा। Amen. Amen. Because we are children of the Most High God. क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हैं। And these are not 40 years, 50 years or 60 years people. These are my age group, even younger than me. और ये कोई 50-60 साल पुराने सेवक नहीं है, ये मेरी उम्र के हैं, बल्कि मुझसे भी छोटे हैं। Because prosperity doesn't come by age, it comes by light. और जो कि समृद्धि जो है वो उम्र के साथ नहीं आती, लेकिन वो प्रकाशन के द्वारा आती है। So I keep teaching it. तो इसीलिए मैं लगातार सिखाते रहता हूँ। I keep teaching it. और मैं लगातार सिखाते रहता हूँ। Because once you grab it, it will work for you like it will work for anyone who grabs the message. यदि आप इसे एक बार पकड़ लेते हैं तो ये उसी तरीके से काम करेगा जैसा उनके लिए करता है जिन्होंने इसे पकड़ लिया है। So poverty is not okay. तो गरीबी जो है वो ठीक नहीं है। Don't accept it. उसे स्वीकार मत कीजिए Don't justify it. और उसे सही मत ठहराइए। And don't even say that because Jesus was poor. और ये भी मत कहिए मैं इसीलिए गरीब हूँ क्योंकि यीशु गरीब था। It's a wrong message. ये एक गलत संदेश है। Okay, let's go to part 4 today. Let's start with John 3:31. और यूहन्ना 3:31 से आज का हम आरंभ करते हैं। All of us, we are going to prosper by grace. All of us. हम सब के सब अनुग्रह ही के द्वारा समृद्ध होंगे। You're already prospering and you're going to prosper even more by grace. और आप पहले से समृद्ध हो रहे हैं और आप इससे भी कहीं अधिक समृद्ध होंगे उसके अनुग्रह के द्वारा। सब बोलिए amen. आमेन। सब बोलिए amen. आमेन। थोड़ा जोर से बोलिए amen. आमेन। Yeah. So John 3:31, Jesus talking about Jesus. He that comes from above is above all.
जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है या सबके ऊपर है. Yes. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from above is above all. जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है. जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है. Now notice he is talking about two kinds of people, one coming from heaven, one coming from the earth. देखिए ये दो तरीके के लोगों के बारे में बता रहा है. एक व्यक्ति जो स्वर्ग से आता है और एक व्यक्ति जो धरती से आता है. And both of them speak differently. और उन दोनों के बात करने का तरीका अलग है. He said, he that is of the earth, they speak of the earth. वो कहता है जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की सी बातें कहता है. He that comes from above, he speaks of above. और जो ऊपर से आता है वो ऊपर की बातें कहता है. Okay, next verse. John 8:23. यूहन्ना 8:23. Jesus is speaking. Jesus says, he said unto them, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ. तुम संसार के हो और मैं संसार का नहीं. See, he knows that he is different. देखिए वो जानता है कि वो अलग है. Yeah, it's important to know that we are different people. और ये महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि हम अलग लोग हैं. Because if you don't see yourself as different, then you begin to see yourself as common. यदि आप अपने आप को अलग नहीं देखेंगे तो आप अपने आप को सामान्य देखेंगे. Jesus said, you are from down, I am from above. यीशु ने कहा तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूँ. You are of this world, I am not of this world. और तुम इस संसार के हो और मैं इस संसार का नहीं. Because where you come from will affect your language. और आप जहां से आते हैं उसका प्रभाव आपकी बोली और भाषा में पड़ेगा. Where you come from will affect your ambitions. और जहां से आप आते हैं उसका असर आपकी महत्वाकांक्षाओं पर पड़ेगा. Where you come from will affect your pursuit. और जहां से आप आते हैं उसका असर आपके अनुसरण पर पड़ेगा. It will affect your dreams. और उसका असर आपके सपनों पर पड़ेगा. So those who are of the earth, they only have earthly dreams. और जो लोग पृथ्वी के हैं उनके सपने भी पृथ्वी तक सीमित रहते हैं. Those who are of this world, they have worldly dreams. और ये जो इस संसार के हैं उनके संसारिक सपने होते हैं. But those that come from above and those that are not of this world, their dreams, their pursuits, their ambitions are very different. और जो इस संसार के नहीं हैं उनके जो सपने हैं उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनका अनुसरण जो है वो बिल्कुल भिन्न होता है. So, you are from beneath, I am from above. वो कहता है तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ. He said, you are from beneath, I am from above. वो कहता है तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ. He said, you are of this world, you belong to this world, I am not of this world. वो कहता है तुम संसार के हो और तुम संसार ही की जैसे हो और मैं इस संसार का नहीं मैं ऊपर से हूँ. He knew a difference. और वो दोनों के बीच का फर्क जानता है. It's very interesting. और ये बहुत दिलचस्प है. Now, I want to give you the fourth reason why believers struggle financially. और मैं आपको चौथा कारण देता हूँ कि क्यों एक विश्वासी संघर्ष करता है. Yeah, let's go to the next slide. See, this is the fourth reason why a believer struggles financially. ये चौथा कारण है कि क्यों एक विश्वासी आर्थिक रूप से संघर्ष करता है. A carnal mind is a hindrance or a barrier in receiving grace-based prosperity. और संसारिक मन अनुग्रह आधारित समृद्धि प्राप्त करने में बाधा है. Grace-based prosperity can only come if your mind is spiritual. और आपको अनुग्रह आधारित समृद्धि केवल तभी मिलेगी जब भी आप आत्मिक मन के हो. We are not talking about prosperity that comes with lot of struggles. और हम उस समृद्धि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत संघर्ष से आती है. We are talking about prosperity that comes by grace. और हम लोग उस समृद्धि की बात कर रहे हैं जो अनुग्रह से आती है. But that grace-based prosperity will be difficult to receive
if a believer's mind is carnal, और वो अनुग्रह आधारित समृद्धि को प्राप्त करना रुकावट हो सकता है या बाधा का कारण हो सकता है यदि उसका मन संसारिक हो. that means the way your mind is, the way your mindset is, can affect grace-based prosperity. और जिस तरीके की आपकी मानसिकता है, जिस प्रकार का मन होता है, यदि वो संसारिक हो तो वो अनुग्रह आधारित समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा. So what does it mean, a carnal mind? और ये संसारिक मन का मूल मतलब क्या होता है? That means a believer who has a worldly mindset. और एक ऐसा विश्वासी जिसके पास संसार के प्रकार का मन हो. He is a believer, वो एक विश्वासी है, but he lives according to the ways of this world. लेकिन वो संसारिक तरीकों के हिसाब से रहता है. He follows the patterns of this world. और वो इस संसार के तरीकों का अनुसरण करता है. He lives by the systems of this और world. वो इस संसार की प्रणालियों के अनुसार जीता है. He is a believer, वो एक विश्वासी ही है, but all his life he is living according to the ways, systems and patterns of this worldly systems. और वो इस संसारिक रास्ते, संसारिक तरीके और संसारिक अनुसरणों के हिसाब से जीता है. For example, उदाहरण के तौर पे, like someone said, everything is on your nasib. और कोई कहता है सब हर एक बात नसीब पर है, Everything is written here. और सब कुछ आपके माथे पे लिखा है. So that believer, he believes that everything is written here. और वो विश्वासी इस बात पर विश्वास करता है कि हर एक चीज नसीब पर है. So even though he is a believer, तो वो विश्वासी होने के बावजूद भी, but because his mind is not renewed, he is still living by the ways and patterns of this world. और वो इस संसार ही के प्रणाली और तरीकों के हिसाब से ही जीता है. That's a carnal mind. और वो एक संसारिक मन है. You could be a believer, but you really have a worldly mindset. और आप एक विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका मन पूरा संसारिक हो सकता है. A fully worldly mindset. और पूरी तरीके से संसारिक मन, Following the worldly ways. और आप संसार के तरीके अपनाते हैं, Following the worldly systems. और संसारिक प्रणालियों को अनुसरण करते हैं. However the world lives, that's how we live. और जिस तरीके से ये संसार जीता है, वैसे ही हम भी जिएंगे. Now, if you're a believer, but Yet- if you have a worldly mindset, grace-based prosperity will stay away from you. यदि आप एक विश्वासी हैं और संसारिक मन वाले विश्वासी हैं, तो ये अनुग्रह आधारित समृद्धि आपसे कोसों दूर रहेगी. You know, when we got born again, in an instant, your spirit got received new birth. और जब आपका नया जन्म हुआ, उस समय आपकी आत्मा में एक नया व्यक्ति का तुरंत परिवर्तन हो गया. But to change your mindset, it takes a lot of time. लेकिन आपके मन को बदलने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है. To change your thinking pattern, it takes a lot of time. आपकी सोचने की प्रणाली को बदलने में बहुत ज्यादा समय लगता है. Because thoughts have to be changed. क्योंकि जो विचार है वो बदले जाने चाहिए. Thinking pattern has to change. और सोचने के तरीके बदलना अनिवार्य है. Because you've been in the house, क्योंकि आप घर में हैं, don't know how your parents have taught you. और आपको नहीं पता कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया नहीं, है. मेरे को नहीं पता, उनको तो पता रहेगा ना. मतलब मेरे को नहीं पता घर में क्या हो. Okay, let's try this again. I don't know how your parents have trained you. और मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता ने मुझे क्या सिखाया है. लेकिन आपको पता है. So maybe in their house, maybe it was always about money. हो सकता है कि उनके घर में हमेशा पैसे के बारे में ही बातें होती So थी. obviously, while you were growing up, then obviously your mind is affected by the communication of your parents. Your mind is affected and probably has become a money-minded person. और देखिए, क्योंकि वो सारी बातें आपके घर में माता पिता के द्वारा होती रहती थी और उसका असर आपके मन पर पड़ा है, और इसीलिए आपका मन जो है वो वैसा हो गया है.
Or maybe you were raised up with friends, worldly friends. हो सकता है कि आपका पालन पोषण उनके साथ हुआ हो जो संसारिक मित्र हैं। Like I had some of my friends, their desire was to become famous. और देखिए मेरे कुछ ऐसे मित्र थे जिनका एक ही उद्देश्य था कि उन्हें प्रसिद्ध होना है। And so if you are around those friends, their speech and their language, it affects your mindset. और यदि आप अधिक समय उनके साथ रहेंगे तो उनके बात करने का तरीका और उनकी सोच का असर आपके ऊपर पड़ता है। Or the challenges that you had in life. और आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां थी Or the experiences that you had in life. और आपके जीवन में जितने भी अनुभव रहे हैं, All of those things shaped your mindset. और उन सारी चीजों के द्वारा आपके मन को आकार दिया गया है। And now one day you're born again. और एक दिन आपका नया जन्म हो गया Spirit has been recreated. और आपकी आत्मा नई बन गई, But the mindset is still the same. लेकिन मन जो है वो पुराना ही रह गया है। So we have to work on our mindset and change our thinking and bring it in line with the kingdom. तो हमें अपने मानसिकता पर काम करना पड़ेगा और उसे बदलना पड़ेगा और उसे वचन के अनुरूप लाना पड़ेगा। So as a believer, if you don't work on your mindset, grace-based prosperity cannot locate you. और यदि आप विश्वासी होने के नाते अगर अपने मन पर काम नहीं करेंगे तो अनुग्रह आधारित समृद्धि आपको कभी ढूंढ नहीं पाएगी। For example, if I say that you are a king, और यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप एक राजा हो, और आप मन में सोच रहे हैं कौन मैं राजा, मैं और राजा। आपने हंस के आमेन भी बोल दिया, अंदर सोच मैं राजा, मेरा भाड़ा नहीं भरा। See, so because of that mindset is not able to receive the revelation, because you already know that you're not a king, you're just an average person like everybody else. और देखिए यही वो मानसिकता है जो रुकावट है। आप हाँ तो बोल रहे हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को सामान्य मनुष्य समझ रहे हो और आप उस प्रकाशन को जो दिया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर रहे। So again, a carnal mindset is a hindrance in receiving grace-based prosperity. तो ये जो संसारिक मन है या संसारिक मानसिकता है वो अनुग्रह आधारित समृद्धि को प्राप्त करने में रुकावट है या बाधा है। All of the prosperity that we are enjoying, it's all by grace. और जो भी समृद्धि का हम लुफ्त उठा रहे हैं ये सब कुछ अनुग्रह के द्वारा है। It's all by grace. और ये सब कुछ अनुग्रह के द्वारा है। And therefore we are enjoying it. और इसीलिए हम उसका लुफ्त उठा रहे हैं। So 1 Corinthians 3:1, पहला कुरिन्थियों 3:1। इसको ध्यान से देखिए। And I, brothers and sisters, could not speak unto you as spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. हे भाइयों, हम तुमसे इस रीति से बातें न कर सके जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसा शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। So he's talking about two kinds of believers in church. और वो कलीसिया में दो प्रकार के विश्वासियों के बारे में बता रहा He है। said first kind of believer is a spiritual believer. Another kind of believer is a carnal believer whom we call spiritual babes in Christ. और एक विश्वासी होते हैं जो आत्मिक विश्वासी होते हैं और दूसरे विश्वासी होते हैं जो शारीरिक विश्वासी होते हैं जिन्हें हम आत्मिक बच्चे भी कहते हैं। You talk to babies differently, you talk to adults differently. और आप बच्चों के साथ अलग तरीके से बातें करते हैं और वयस्क लोगों के साथ अलग तरीके से बातें करते He's हैं। saying the same thing. He says, I could not speak to you as spiritual, but I had to speak to you as babies because you are carnal still. और वो कहता है कि मैं तुमसे ऐसे बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, लेकिन ऐसे मैंने तुमसे बातें की जैसे तुम बालक हो क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो। Next verse. इसको ध्यान से देखिए, it's very important. I fed you with milk, not with meat. For still you are not able to bear it, yet now you are not able. और मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरना अब तक भी नहीं खा सकते हो। Now notice, when a believer is carnal, there are certain things he can't receive. और जब तक वो विश्वासी संसारिक है
तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे वह ग्रहण नहीं कर सकता। And one of those things he can't receive is grace-based prosperity. Grace-based prosperity is not for babies, it's for adults. और देखिए, जो वो चीजें प्राप्त नहीं कर सकता उनमें से एक ये है कि अनुग्रह आधारित समृद्धि। अनुग्रह आधारित समृद्धि जो है वो बालकों के लिए नहीं है। And I'm not talking about age. और मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूं। It's about spiritual maturity. और ये आत्मिक परिपक्वता की बात है। The Apostle Paul says, I came with meat. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं मांस के साथ आया, I came with spiritual meat. और मैं आत्मिक मांस या अन्न के साथ आया। And when I came, he says, I saw that you were still carnal. और जब मैं आया तो मैंने देखा कि तुम अभी भी शारीरिक ही हो। So he said, I was not able to give you this because you won't be able to receive it. That means when a believer has carnal mindset, he cannot receive the deep teachings of the word. और वो कहता है कि मैं वो तुम्हें दे न सका क्योंकि तुम अभी भी शारीरिक थे। जब एक विश्वासी शारीरिक दशा में होता है तो वो आत्मिक गहरी बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। Yeah, he can't because he can't digest it. और क्योंकि वो उसे हजम नहीं कर So पाएगा, we have to give them basic teachings. तो हमें उसे फिर से सामान्य शिक्षाएं देनी पड़ती है। Because to take advanced teachings, a believer has to become mature. और क्योंकि ऊपरी शिक्षाओं को लेने के लिए एक विश्वासी को अधिक परिपक्व होना पड़ेगा। So he says, I came with deep teachings, but because you were carnal, you are not ready, so I went back to the basic teachings. वो कहता है कि मैं गहरी शिक्षाओं को तुम्हारे पास लाया था क्योंकि तुम उसे ग्रहण करने की अवस्था में नहीं थे, इसीलिए फिर से मैंने वही सामान्य शिक्षाएं तुम्हें दी। What was the reason they could not accept it? और वो कौन सा कारण था जिसके कारण वे ग्रहण नहीं कर पाए? Because they were carnal. क्योंकि वे शारीरिक थे। It's not that the teachings were not available. और ऐसा नहीं है कि वो शिक्षाएं उपलब्ध नहीं थी। All the teachings are available. और सारी शिक्षाएं उपलब्ध हैं। But they were not ready to receive the depth of God's word. और वो तैयार नहीं थे परमेश्वर की गहरी बातों को ग्रहण करने के लिए। It's because their mindset was not ready. क्योंकि उनका मन तैयार नहीं था। I want to tell you, in order to walk in grace-based prosperity, a carnal mindset is a hindrance. और यदि आपको अनुग्रह आधारित समृद्धि में चलना है तो आपका शारीरिक मन ही उसे प्राप्त करने के लिए बाधा का कारण होगा। No matter how much you try to give meat to a baby, चाहे आप जो जड़ अन्न है कितना भी कोशिश करो एक छोटे बालक को देने के लिए, you give it, they throw it out. और आप उसे देंगे वो फिर से बाहर निकाल देगा। You give it, they throw it out. और आप उसे देंगे और वो फिर से बाहर निकाल देगा। You give it, फिर आपके मुंह पे ही दे देंगे वो. Then you give it, then they'll throw it out. और आप उसे देंगे और वो फिर से बाहर निकालेगा। क्या बोल रहे हैं? अरे हम रेडी नहीं हैं, फिर दे रहे हैं, फिर फेंक देगा. Because it is for mature people. क्योंकि ये वयस्क लोगों के लिए है। There are a lot of teachings. और बहुत सारी शिक्षाएं हैं। There is so much depth. और बहुत ज्यादा गहराई उपलब्ध है। But it's only for those whose mindset is spiritual. और लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए है जिनकी मानसिकता आत्मिक है। Amen. आमीन। Okay, number 2. Yeah, we will skip this. The flow of prosperity is determined by your mindset. समृद्धि का प्रवाह आपकी सोच के द्वारा निर्धारित होता है। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। It doesn't matter how many years we've been in faith. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम विश्वास में कितने सालों से हैं। What matters is how has your mindset been trained. और इससे फर्क पड़ता है कि आपके मन को क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है। Because either your mindset is going to help you or your mindset is going to block that prosperity from coming to you. और दो ही बातें हो सकती है, या तो आपका मन आपकी मदद करेगा आपको उसमें आगे जाने के लिए, या तो आपका मन ही रुकावट बनेगा ताकि आप उसे प्राप्त न कर पाओ। Someone said Satan is blocking it. और कोई कह रहा है कि शैतान उसे रोक रहा है। Satan is not blocking it. और शैतान उसे नहीं रोक रहा। It's our carnal mindset that is blocking it. ये हमारा शारीरिक मन है जो उसे रोक रहा है। So the flow of prosperity is determined by
your mindset. तो समृद्धि का जो प्रवाह है वो आपकी सोच के ऊपर निर्धारित है. He said, work on your mindset. वो कहता है कि अपने मन पर काम करो, Change your thoughts. अपने सोच विचार को बदलो, Work on your imagination. अपनी कल्पनाओं पर काम करो Work on your meditation. और अपने ध्यान करने पर काम करो. See differently. अलग तरीके से देखो, Think differently. अलग तरीके से सोचो. Once you do that, prosperity will find you. और यदि आप ऐसा करने लगेंगे तो समृद्धि खुद आपको ढूंढ कर We आएगी. got to think differently. हमें अलग तरीके से सोचना होगा. There is a big difference how kings think and how slaves think. और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है कि कैसे राजा लोग सोचते हैं और कैसे गुलाम लोग सोचते There हैं. is a big difference between how sons think and how servants think. और इन दोनों के बीच में भी बहुत बड़ा अंतर है कि बेटे लोग कैसा सोचते हैं और नौकर लोग कैसा सोचते हैं. So the flow, मतलब how much flow you want. और आपको कितना प्रवाह चाहिए. The flow of prosperity to you is determined by your thoughts. और आपको समृद्धि का कितना प्रवाह दिया जाएगा ये आपके सोच पर निर्धारित है. Your mindset will determine it. और आपकी मानसिकता इस चीज को तय करेगी. Maybe you are thinking that my age, I'm too young for this prosperity. हो सकता है आप सोच रहे हो कि इस समृद्धि को संभालने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा जवान हूं. No, why do you accept that lie? Who told you that young people cannot prosper? Which YouTuber are you listening to? और आपको किसने कह दिया कि जवान लोग समृद्धि को नहीं संभाल पाएंगे? कौन से यूट्यूबर ने कहा या किस व्यक्ति ने आपको ये गलत सलाह दी है? Wasn't it the young boy who fed the 25,000 people with 12 baskets remaining? क्या वो जवान व्यक्ति नहीं था जिसने 25,000 लोगों को रेगिस्तान में खिलाया और उसके बाद भी 12 टोकरियां बच गई? Jesus multiplied it, और यीशु मसीह ने बहुगुणित किया. but whose tiffin box was it? लेकिन आखिर वो भोजन किसका था? It was that little boy. और वो उस छोटे लड़के का था. It was that little boy's giving that fed the multitude in the desert. और वो छोटे लड़के के देने के कारण हजारों लोगों ने उस रेगिस्तान में खाया. So these, in the world there are many statements that many people make. और इस संसार में बहुत सारी वाक्य रचना है जो बहुत सारे लोगों ने कहा है. And if you're not careful, you will take those statements and make it the truth of your life. और यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप उन वाक्य रचनाओं को उठाकर अपने जीवन का सिद्धांत बना लेंगे. So and they want to affect your mindset. और वो आपके मन के ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं. Someone highly educated, they came and said, we came out of monkeys. They want to affect our mindset. और एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ने आकर ये कहा कि हम बंदरों से आए हैं और वो हमारे मन पर गलत प्रभाव डालना चाहते हैं. Someone else came and said there was a big bang and the universe came into existence. What are they trying to do? They're trying to take God out of the picture. They want to take moral accountability out of the picture. That's why they exclude God. और देखिए फिर एक व्यक्ति ने कहा कि सब कुछ ऐसा फूटा और ये पृथ्वी निकल आई. वो लोग क्या करना चाहते हैं? वो लोग परमेश्वर को तस्वीर से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि कोई भी नैतिक लेखा देना न पड़े. See, God is not there, they say. और वो कहते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं. So enjoy your life. तो आप अपने जीवन का आनंद Do उठाओ whatever you want. और आप वो सब करो जो आपको करना है. Because ultimately there is no judgment because there is no God. और कोई न्याय नहीं होने वाला क्योंकि कोई परमेश्वर है ही नहीं. So by teachings like these, they want to affect the mindset of people. और इन शिक्षाओं के द्वारा वो लोगों के मन पर गलत प्रभाव डालना चाहते हैं. So many are after our mindset. Many. और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मन के पीछे पड़े हैं. Because your mindset will determine how far you will go. क्योंकि आपका मन ही ये तय करेगा कि आप कितना आगे जाएंगे. You are not limited by your surname. और आप अपने सरनेम के द्वारा सीमित नहीं हो. You are limited by your mindset. और आप अपने मन के द्वारा सीमित हो. He says the flow of prosperity is determined by your mindset. और वो कहता है समृद्धि का जो प्रवाह है वो आपके सोच विचार के ऊपर आधारित है. Okay, next verse. इसको देखिए 3 John 1:2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul, meaning as your mind prospers.
you will prosper in every area. हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वो प्राण की बात कर रहा है कि जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है। That means, please understand, the level of your all-round prosperity will depend on the level of the prosperity of your mind. और आपकी सर्व समृद्धि निर्भर करती है आपके मन की सर्व समृद्धि पर। That's why good fathers and good mothers, they will wait for their children to become mature before they release certain blessing into their hands. और इसीलिए जो परिपक्व माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए इंतजार करते हैं कि वो एक सही उम्र तक पहुंचे और उसके बाद वो आशीषें उन्हें आजाद करते हैं। There is one more verse in the Bible. और एक और वचन है बाइबल में, He says, a son, as long as his mind is not renewed, even though he owns everything, he will live like a slave. और एक व्यक्ति जो बेटा है और वो बेटा होने के बावजूद क्योंकि वो बड़ा नहीं हुआ, उसकी मानसिकता नहीं बढ़ी है, वो बेटा होने के बावजूद भी दास के समान जिएगा जबकि सब कुछ उसी का है तो भी। You know, a son एक जो बेटा है who owns everything, जिसका अधिकार सब चीजों के ऊपर है, but because he has not worked on his mindset, क्योंकि उसने अपने मन पर काम नहीं किया है, even though he owns everything, he still lives like a slave. और वो सब चीजों का मालिक होने के बावजूद भी एक दास के समान जीवन जीता है। So I said, Lord, I will work on my mindset. तो मैंने कहा, प्रभु मैं अपनी मानसिकता पर काम करूंगा I refuse to live like a slave. और मैं एक गुलाम की जीवन जीने के लिए मना करता हूं I'm going to change my thinking. और मैं अपनी सोच को बदलूंगा, Because my all-round prosperity depends on the level of my thinking prosperity. और मेरी समृद्धि उसी पर निर्भर करती है जितनी मेरी सोच में समृद्धि हो। Yeah, our mind has to prosper. और पहले हमारे मन को समृद्ध होना है, Our thinking has to prosper. हमारे सोच विचार में समृद्धि होनी If चाहिए। that doesn't happen, यदि वो नहीं हुआ even though you have everything, it's as if you have nothing. और सब कुछ होने के बावजूद भी तो भी अवस्था ऐसी रहेगी जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है। You have everything. आपके पास सब कुछ है, You have everything. आपके पास सब कुछ है By birth, you have it. और आपके नए जन्म से आपको सब कुछ है। And if we work on our mindset, यदि हम अपने मन पर काम करें work on our thinking, और हमारे सोच विचार पर काम करें work on our thinking, और हमारे सोच विचार पर काम as करें, your thinking begins to develop, जैसे आपके सोच विचार बढ़ते जाएंगे and it doesn't develop in a second, और वो एक क्षण भर में नहीं बदल it जाते doesn't develop in 2 months, और वो 2 महीने में नहीं बदल जाते it doesn't develop in 3 months. और वो 3 महीने में नहीं बदल जाते। You have to keep working on it till your mindset develops. और आपको लगातार उसके ऊपर काम करते रहना पड़ता है जब तक वह विकसित हो। And as your mindset develops, और- the level of your prosperity will develop proportionately. और जैसे आपके मानसिकता में समृद्धि का विकास होता है उसी लेवल पर आपको समृद्धि भी आपके जीवन में आजाद कर दी जाती है। For example, उदाहरण के तौर पे I say to you, when you were born again, you have everything. और जैसे मैंने आपसे कहा जब आपका नया जन्म हुआ तो आपको सब कुछ दे दिया गया है। Now you can say, how is this possible? और आप कहते हैं कि ये कैसे संभव It's हो not सकता है possible. और ये संभव नहीं है It's not true. और ये बात सच नहीं है That doesn't mean my message is wrong. और इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा संदेश गलत ठहरा Nobody's expression makes my message wrong. और किसी का भी हाव भाव मेरे संदेश को गलत नहीं ठहरा It's सकता। just that our mindset needs to be worked on. और इसका एक ही मतलब है कि हमारी जो मानसिकता है उस पर काम किया जाना बाकी है। Because I'm trying to give you meat. और मैं आपको जड़ अन्न देने की कोशिश कर रहा And हूं if your mindset is not renewed, then you're going to spit it back out. और यदि आपका मन नया नहीं किया गया है तो आप उसे मुंह से उगल कर फेंक देंगे। And if your mindset is not ready, you're going to spit it out. You're going to spit it out. You will not receive it. और यदि आपका मन तैयार नहीं है तो आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे, आप उसे थूक देंगे। Next verse. इसको देखिए, Romans 8:5. रोमियो 8 का 5। Those believers
that are carnal, they are carnal because they put their mind in the things of the flesh. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, वे विश्वासी इसीलिए शारीरिक हैं क्योंकि उनका मन शारीरिक बातों पर लगा हुआ है. Those believers that are spiritual today, they are spiritual because they put their mind on the things of the spirit. और जो विश्वासी आज आत्मिक है वो इसीलिए आत्मिक है क्योंकि उन्होंने अपने मन को आत्मिक बातों पर लगाया है. You are a believer. और आप एक विश्वासी हो There are things of the world और वहां पर संसार की चीजें हैं and there are things of the word. और वहां पर वचन आधारित चीजें हैं. Now your mind is in your control. You choose where you want to put your mind. और अभी जो आपका मन है वो आपके ही नियंत्रण में है और आप ही चुनाव कर लीजिए कि आपको अपना मन किसके ऊपर लगाना है. And wherever you put your mind will determine whether you are spiritual or you are carnal. और जहां कहीं पर भी आप अपना मन लगाएंगे उसी से ये बात निर्धारित हो जाएगी कि आप शारीरिक हैं या आप आत्मिक हैं. And we have to become spiritual because there are a lot of deep things in the kingdom that we must receive because lot of people need it. और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में ऐसी बहुत सारी गहरी बातें हैं जिन्हें हमें ग्रहण करना जरूरी है क्योंकि यदि हम ग्रहण करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है. One pastor was telling us और एक पासवान हमें बता रहे थे that how can just money come out of the mouth? और कैसे हो सकता है कि मुंह से पैसा बाहर आए. अंदर कुछ है क्या? टैंक लगा है क्या? You open the mouth and money, 500 rupee note comes out. और अंदर Now I know the pastor has difficult. It doesn't make my message wrong. My message is not wrong. और मुझे पता है कि उस पासवान को इस बात को समझने में दिक्कत आ रही होगी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा संदेश गलत है. See, comments, opinions, expressions don't make my message wrong. देखिए लोगों के सुझाव, लोगों की टिप्पणियां और लोगों के जो सोच विचार है उससे मेरा संदेश गलत नहीं ठहरेगा. It just means they are babies. और इसका केवल एक ही मतलब है कि वे अभी तक बालक हैं. So I was saying in the meeting, I said, look at the sun. और मैंने उस सभा में कहा कि सूरज को देखो. Look at the stars. और आप सितारों को देखो. And question yourself, where did it come from? और अपने आप से सवाल पूछो कि ये सब कहां से आया. And when you study the Bible, you find out that the sun came out of God's mouth. और जब आप बाइबल को अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सूर्य है वो परमेश्वर के मुंह से निकला है. When you look at the moon, the beautiful moon, you see that it came out of God's mouth. और यदि आप चंद्रमा को देखते हो जो बहुत सुंदर चंद्रमा है आपको पता चलेगा कि वो परमेश्वर के मुंह से निकला है. And sun is a star. और चंद्रमा एक तारा है. And it's a medium sized star. और ये एक मध्यम साइज का तारा है. There are stars that are bigger than the sun. और सूर्य से भी कई अधिक बड़े सितारे हैं. And that sun came out of God's mouth. और वो जो सूर्य है वो परमेश्वर के मुंह से निकला है. Now if sun came out of God's mouth, your prosperity can come out of your mouth. और जब परमेश्वर के मुंह से सूर्य आ सकता है तो आपके मुंह से आपकी समृद्धि भी आ सकती है. So I was not offended when that pastor said that to me. I just said, you need to grow up, sir. और मैं अपने मन में खेदित नहीं हुआ जब पासवान ने मुझे ऐसी बात कही. मैंने सिर्फ उनसे अपने मन में ये कहा कि इन्हें और ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता है. He said, those that are carnal are because they put their mind on the things of the world. They are in the world all the time. All the time. Their time, their discussion, everything they talk about is worldly things. और देखिए क्योंकि उन्होंने अपना मन संसारिक चीजों पर लगाया है इसीलिए उनका समय उनका मन सब कुछ उनकी बातें संसार ही के बारे में और उसी के अनुसार होती है. But those who are spiritual, they are spiritual not because God made them spiritual. और They are spiritual because they put their mind in the things of the spirit. और जो लोग आत्मिक है उन्हें परमेश्वर ने आत्मिक बनाया है ऐसा नहीं है. उन्होंने ये चुनाव किया है कि वो अपने मन को आत्मिक बातों पर लगाएंगे इसीलिए वे आत्मिक हैं. You know, somebody said, Pastor, my mind वचन की तरफ जाता नहीं है. My mind doesn't go to the word. Think about your child saying, मुझे खाना नहीं है. Good parents, what they will do, like me, let's talk about good parent. I'm a good parent. So if my son says he doesn't want to eat, then we have a big stick in the house. एक बड़ा लकड़ी हम रखते हैं. फिर we also keep a belt in the house.
those things when we bring out, suddenly my son says, I will eat now. और देखिए, एक अच्छे माता पिता की तरह आप सोचिए कि जब आपका बच्चा खाना खाना नहीं चाहता है तो आप क्या करेंगे। आप जैसे मैं एक अच्छा हम लोग माता पिता हैं तो हम लोग लकड़ी रखते हैं घर पे, बेल्ट रखते हैं, और जब हम उसे निकालते हैं तो बच्चे का खाना खाने का मन तुरंत करता है। Yeah, otherwise he don't want to eat. और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो खाना खाना नहीं चाहता है। You don't want to hear the word. और आपको वचन सुनना नहीं है, You don't want to hear the word. और आपको वचन सुनने की इच्छा नहीं You है, want to spend time in reality shows. और आपको रियलिटी शो में समय बिताना अच्छा लगता है। But your mind doesn't want to, so you have to force your mind. और You want आपका to make your mind do it and make it do it and make it do it. Force your mind to do it till the word becomes your delight. और आपका मन वहां पर बिल्कुल जाना नहीं चाहता है, लेकिन आप अपने मन के साथ जबरदस्ती कीजिए। Yes. और उसके साथ फिर जबरदस्ती कीजिए, और फिर से तीसरी बार जबरदस्ती, बार बार जबरदस्ती कीजिए, और तब तक कीजिए जब तक वचन आपका पसंदीदार स्थान नहीं बन If जाता। you don't train your mind will keep you poor. और यदि आप अपने मन को प्रशिक्षण नहीं देंगे तो आपका मन ही आपको गरीब रखेगा। Don't listen to your mind, talk to it. और आप अपने मन की मत सुनिए, लेकिन आप अपने मन से बातें कीजिए। We don't take advice from our mind. और हम अपने मन से सुझाव नहीं लेते। पहले से शारीरिक मन है, क्या एडवाइस देगा हमको? We don't take advice from our mind. We talk to our mind. और हम अपने मन से कोई सुझाव नहीं लेते, लेकिन हम अपने मन को सुझाव देते हैं। Now, next, let's go to the next verse. Yeah, one more next verse. Let's go to Romans 12:2. Yeah, look at this verse, Romans 12:2. Don't be conformed or like this world, but be transformed by the renewing of your mind. और इस संसार के सदृश्य या इस संसार के जैसे मत बनो, पर But be transformed by the renewing of your mind. लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। So he tells us true transformation happens when a person's mindset gets changed. और वो कहता है कि सच्चा परिवर्तन तब आता है जब एक व्यक्ति की मानसिकता बदलती है। He says true transformation begins when you're born again, but it manifests when you work on your thinking day by day. और वो कह रहा है कि आपका परिवर्तन उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन आपका नया जन्म हुआ था, लेकिन उसका प्रगटीकरण तब होता है जब आप हर दिन अपने मन को नया करने का निर्णय लेते हो। And you're working on your mind. और आप अपने मन पर काम कर रहे हो, Because your family upbringing has affected your mind. क्योंकि आपका जिस तरह से पालन पोषण हुआ है आपके परिवार में, उसका असर आपके मन पर पड़ा है। Where you have been educated has affected your mind. और जहां पर आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है उसका असर आपके मन पे पड़ा है। The challenges of your parents has affected your mind. और आपके माता पिता जो चुनौती से गुजरे हैं उसका असर आपके मन पे पड़ा है। Your past experiences has affected your mind. भूतकाल के आपके अनुभव का जो असर है वो आपके मन पर पड़ा है। There is so much to work on. और बहुत सारी चीजें हैं मन के ऊपर काम करने के And लिए। he says you will stay like the world if you don't work on your thinking. But if you work on your thinking, your life will be transformed. और वो कहता है यदि तू अपने सोच विचार पर काम नहीं करेगा तो तू संसार के सदृश्य ही बना रहेगा, लेकिन यदि तू अपने सोच विचार पर काम करेगा, अपने मन को बदलेगा, तो तेरा जीवन भी उसके द्वारा परिवर्तित होगा। When God wants to take you to a higher level, जब परमेश्वर आपको ऊंचे स्तर पर लेके जाना चाहता है, इसको ध्यान से सुनिए, when God decides to take you to a higher level, जब परमेश्वर आपको ऊंचे स्तर पर लेके जाना चाहता है, he will bring in new food. तो वो आपके लिए नया भोजन लेकर आएगा। Because there are different level of food for different levels. और अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं। So if you are not willing to change your food, you're not ready for higher dimension. और यदि आप अपने भोजन को बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो इसका मतलब आप ऊंचे स्तर के लिए तैयार नहीं हो। So if I'm not working on my mindset, I cannot receive the depth of God's word. I always want to be comfortable with milk.
और देखिए, यदि मैं अपने मन को नया करने में दिलचस्पी नहीं रखता हूं, तो मैं परमेश्वर के सामान्य वचन जो दूध के समान है उसी में ही अपने आप को तृप्त रखूंगा। लेकिन यदि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उसे बदलना होगा। There are so many dimensions to go higher. और ऊपर जाने के लिए बहुत सारे आयाम मौजूद हैं। You know, we have not even started. और हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। This is level 0, और ये तो 0 लेवल पर है level 1. और लेवल 1 पर है। There are so many levels up, और ऊपर बहुत सारे आयाम हैं। and you cannot go to the next level unless your thinking changes. और आप अगले स्तर पर नहीं जा सकते जब तक आपकी मानसिकता बदलती नहीं। We have not even scratched grace-based prosperity. और हमने अनुग्रह आधारित समृद्धि को अभी तक खरोचा भी नहीं है। There is so much more. और उससे बहुत ज्यादा उपलब्ध है। There is a grace that feeds nations. और ऐसे अनुग्रह मौजूद है जो पूरे देश को खिला सकते हैं। There is a grace that feeds communities. और ऐसे अनुग्रह हैं जो पूरे संप्रदाय को खिला सकते We हैं। have not even scratched it. और हमने अभी तक तो उसे खदोड़ा भी नहीं है। There are so many dimensions. और बहुत सारे आयाम हैं There are so much depth. और बहुत ज्यादा गहराई है। And God says, work on your mindset. और परमेश्वर कहता है कि अपने मन के ऊपर काम करो Work on your thinking. और अपने सोच विचार पर काम करो। He says, as you work on your thinking, by degree, your transformation will manifest. वो कहता है यदि तुम अपने मन पर काम करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके स्तर स्तर करके वो आपके जीवन पर प्रकट रूप से दिखेगा। Next slide. How do you shape your mindset? और आप अपने मन को कैसे आकार देंगे? How do you transform it? और आप उसे परिवर्तित कैसे करेंगे? How do you change your thinking? और आप अपनी सोच को कैसे बदलेंगे? Number one, it happens through teachings. और सबसे पहला वो होता है शिक्षाओं के द्वारा। Somebody has to teach you. किसी ने तो आपको सिखाना है। Somebody has to teach you the word. You got to sit in front of someone who's teaching you the word. और आपको किसी ऐसे एक व्यक्ति के सामने बैठना है जो आपको वचन सिखा रहा हो। Not someone who's teaching you that you belong to Lazarus tribe. और आपको उस व्यक्ति के सामने नहीं बैठना है जो आपसे कहे कि तुम लाजरस वाले ग्रुप में हो। Or poverty is humility. और जो गरीबी है वही नम्रता है। No, we have to sit in the front we have to sit in the presence of right teachings. और हमें सही शिक्षाओं को जो सिखाता है उसकी उपस्थिति में बैठना है। No one stands in life unless they first sit. और देखिए, कोई भी अपने जीवन में खड़ा नहीं हो पाता यदि वो बैठा ना हो। Martha never had time to sit. और मार्था के पास बैठने के लिए समय नहीं हुआ She was करता। always running. और वो हमेशा यहाँ वहाँ भागती। She was always on the move. और वो हमेशा चलती रहती थी। And she made no progress. और उसने अपने जीवन में कोई प्रगति नहीं की। But her sister, she sat at the teachings of Jesus. You have to sit. लेकिन उसकी जो बहन थी वो यीशु मसीह की शिक्षाओं के लिए वो बैठी। You have to sit. और आपको भी बैठना होगा। It doesn't matter how busy you are. You have to sit. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने व्यस्त हैं, आपको बैठना होगा। Even if you're a pastor, bishop, apostle, you have to sit. यदि आप एक पासवान है, बिशप है या प्रेरित है तो भी आपको बैठना होगा। Doesn't matter what your title is. You have to sit. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शीर्षक क्या है, तो भी आपको बैठना होगा। Because mindset cannot change in a day. Somebody has to teach you the word and you have to sit and learn. और एक दिन में मानसिकता नहीं बदलती, आपको बैठना होगा और बैठकर सीखना होगा। And then what you are learning, it has to go on in your mind. और जो कुछ भी आप सीखते हो वो बातें आपके मन में लगातार चलती रहनी It चाहिए। has to go on. I'm a king. और आपको अंदर चलती रहनी चाहिए कि मैं राजा हूँ, I am king. मैं राजा हूँ, I am king. मैं राजा हूँ। I'm born in wealth. और मेरा जन्म ही समृद्धि में I'm हुआ not है। going to pursue money. और मैं पैसे का अनुसरण नहीं I'm करूंगा। born in wealth. मैं समृद्धि में ही जन्माया गया I'm हूँ। born rich. और मैं जन्म से ही धनी I'm हूँ। born in wealth. और मैं समृद्धि में जन्मा हूँ। You're meditating on those things and you're affirming the word to yourself consistently till it begins to shape your mindset. और आप उसे मनन करते हुए लगातार उस वचन को बोलते रहते हो। आप तब तक उसे बोलते रहते हो जब तक वो आपकी सोच को आकार नहीं दे देता। Once your mindset is set, और एक बार जब आपके मन को आकार मिल गया, कोई आपको गिरा नहीं सकता.
No, it's impossible. और ये असंभव होगा, No matter who says what. और चाहे कोई कुछ भी क्यों न कह दे। So, you are sitting in front of the teachings और आप शिक्षाओं के सामने बैठते हो and you're meditating. और आप मनन कर रहे हो, And whatever you're learning, you are affirming. और जो कुछ भी आप सीख रहे हो आप उसकी पुष्टि कर रहे हो। And these teachings, they go inside you and they begin to, like a potter, he gives shape to clay. These teachings begin to shape your mindset. और एक कुम्हार के समान जैसे आप बैठे हो उन शिक्षाओं के सामने और मनन कर रहे हो, ये शिक्षाएं आपके मन को आकार दे रही है जैसा कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। Because it will affect how you see yourself. और इससे फर्क पड़ेगा, असर होगा कि आप अपने आप को जिस तरीके से देखते हो उस पर। It will affect the way you see money. और इससे असर पड़ेगा आप जिस तरीके से पैसे को देखते हो। This is how you change your और mindset. ये वो तरीका है जिसके द्वारा आप अपना मन बदलते हो। Teachings upon teachings. शिक्षाओं के ऊपर शिक्षाएं, You and what you learn, you meditate. और जो आप सीखते हो आप उसके ऊपर मनन करते हो, Write it down. और आप उसे लिख लेते हो, And then begin to affirm what you have been taught. और आप फिर उन बातों की पुष्टि करने लगते हो जो आप सीखे हो। Affirm who you are in Christ. और आप पुष्टि करो कि आप मसीह में कौन हो, Affirm what you have in Christ. और आप पुष्टि करो कि आपको मसीह में क्या मिला है। Things won't change tomorrow. और कल सारी चीजें बदल नहीं जाएगी। When I started all these things on Monday, Tuesday, nothing changed. और जब मैंने इन सारी बातों की शुरुआत सोमवार को की थी तो मंगलवार को सब कुछ बदल नहीं गया, But in the spirit, things started turning. लेकिन आत्मिक क्षेत्र में चीजें घूमने लग गई। Anytime your words change, things are changing in the spirit. जब कभी भी आपके मुंह के शब्द बदलते हैं तो आत्मिक दुनिया में चीजें बदलने लगती है। Do you know our generations will never see poverty? क्या आपको पता है हमारी पीढ़ियां कभी भी गरीबी को नहीं They will देखेगी, never know it. और वो कभी उसे जानेगी भी They नहीं, won't even hear about it. और वो कभी उसके बारे में सुनेंगे भी नहीं। How can you be so confident? और आप इतना ज्यादा हियाव से कैसे कह सकते हैं? Can you be confident if somebody jumps from here, where are they going? और क्या आप हियाव से कह सकते हैं कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर नीचे कूदेगा तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर तो नहीं जाएगा. This is second floor, right? Ground floor नहीं. और ये दूसरी मंजिल They है, will go down. और वो नीचे जाएंगे। I got it. और मुझे मिल गया, I said, Lord, I'm going to work on my mind. और मैंने कहा प्रभु मैं अपने मन के ऊपर काम करूंगा, I'm going to cancel every unnecessary meeting. और मैं हर एक अनावश्यक मीटिंग को कैंसिल करूंगा, I'm going to protect my 24 और hours. मैं अपने 24 घंटे की रक्षा करूंगा, And I'm going to sit. और मैं बैठूंगा, And I'm going to work on my mindset. और मैं अपने मन के ऊपर काम करूंगा। And as my mindset began to prosper, resources came from all four directions. और जैसे मेरा मन समृद्ध होने लगा तो जो संसाधन थे वो चारों दिशाओं से मेरे पास आने लगे। It's not just for me, और ये केवल मेरे लिए नहीं है, it's for everyone. और ये हर किसी के लिए है। And if you work on your mindset, you become a magnet. और यदि आप अपने मन पर काम करेंगे तो आप चुंबक बन जाएंगे। And so teachings upon teaching. और शिक्षाओं के ऊपर शिक्षाएं, And I begin to affirm. और मैं उनकी पुष्टि करने लगा। Prosperity Now, Prosperity Forever book, it just came out recently. But from the last 15 to 20 years, I've been speaking prosperity out of my mouth. और देखिए ये जो समृद्धि अभी और समृद्धि हमेशा, ये जो किताब है ये तो अभी आई है, लेकिन ये जो अंगीकार है ये मैं पिछले 15 सालों से लगातार करते आ रहा हूँ। गढ़ों को ढाना असंभव है. Fortress. जो गढ़ होते हैं उसे तबाह करना असंभव होता है, It's impregnable. और देखिए उसे ढाया नहीं जा सकता। When your mindset is ready जब आपका मन तैयार है and you've spoken the word, और जब आपने वचन को कह दिया your है, prosperity becomes like a fortress, nobody can destroy it. तो आपकी समृद्धि एक गढ़ के समान बन जाएगी जिसे कोई भी तबाह नहीं कर सकता, Because you have built it. क्योंकि आपने उसे निर्माण कर दिया है। Amen. आमीन। And 15 to 20 years speaking prosperity, think about how strong our fortress is और today. 15 से 20 साल लगातार समृद्धि के पुष्टिकरण करने से आप सोचिए हमारा वो गढ़ कितना मजबूत होगा। No demon can break it. और कोई दुष्ट आत्मा उसे तोड़ नहीं No सकती, financial challenges can break और it. कोई भी वित्तीय चुनौती उसे गिरा नहीं सकती। Finally, this is my last point. When we say mindset, what does that mean? और यदि हम कहते हैं मानसिकता को बदलना है तो उसका मूल मतलब क्या है? It means develop number one, develop a spiritual mindset. इसका मतलब है कि आप आत्मिक मन को विकसित करें।
That means don't just think about physical all the time. Life is spiritual. इसका मतलब ये है कि हमेशा ही शारीरिक चीजों के बारे में अधिक सोचते मत रहें, क्योंकि जीवन आत्मिक है। Life is spiritual. जीवन आत्मिक है। So working on your mindset means develop a spiritual mentality. See things from spiritual perspective. और आत्मिक मन को विकसित करने का मतलब है कि आप आत्मिक चीजों के बारे में अपने मन को डालें और शारीरिक चीजों पर अधिक मन को न लगाएं। Number 2, it means develop a kingdom mindset. Don't just say that it's democratic. No, it's a kingdom that you are in. और उसका दूसरा मतलब यह है कि अपने मन को राजकीय बनाएं। आप हमेशा ये मत कहिए कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। नहीं, आपके मन को राजकीय बनाएं। We are in God's kingdom. और हम परमेश्वर के राज्य में हैं। In the kingdom, Jesus is the king. और इस राज्य में यीशु मसीह यहाँ का राजा है। And what he says is final. और जो वो कहता है वही अंतिम होता है। Developing a heavenly mindset, not just an earthly mindset, but developing a heavenly mindset. और आपको स्वर्गीय मन विकसित करना है, पृथ्वी का मन नहीं, नीचे का मन नहीं, लेकिन पृथ्वी स्वर्गीय मन विकसित करना है। It's so important to be heavenly minded person. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्वर्गीय मानसिकता वाले व्यक्ति बनो। Even in the corporate world, wherever you are, it is so important to be heavenly minded. और आप कॉर्पोरेट में हो या कहीं पर भी क्यों ना हो, ये जरूरी है कि आप स्वर्गीय मानसिकता वाले व्यक्ति रहो। Someone said, किसी ने कहा, don't be so heavenly minded that you become of no earthly good. और किसी ने कहा कि तुम इतना ज्यादा स्वर्गीय मन वाले मत बनो कि तुम पृथ्वी के लिए किसी काम के ही ना रहो। Obviously, the one who made the statement has not read his Bible. और हाँ, जिस व्यक्ति ने इस वाक्य रचना को कहा उसने अपना बाइबल नहीं पढ़ा होगा। But according to the Bible, we must be heavenly minded. लेकिन बाइबल के अनुसार हमें स्वर्गीय मन वाला व्यक्ति होना है। Next, have a I have mentality, not a always getting mentality. और हमेशा आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मेरे पास है, मैं इसे प्राप्त करूंगा, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। I have mentality. और मेरे पास है ये Because मानसिकता। all this, the word will train us. It will train us to have a mindset which is I have mindset. और ये जो वचन है ये हमें पूरी तरीके से प्रशिक्षण देगा, और वो प्रशिक्षण होगा कि मेरे पास है। Manifesting mentality, because you already have it and now you're manifesting it instead of trying to get it. और प्रकट करने की मानसिकता, क्योंकि आपके पास पहले से है, क्योंकि वो है इसीलिए अभी उसे प्रकट करना है, तो प्रकट करने की मानसिकता। Assignment mentality. और कार्यभार मानसिकता। As do you know that when you go to heaven you'll still be working? और आपको पता है जब आप स्वर्ग जाएंगे आप वहां पर भी जाकर काम करेंगे। Because we work on assignments. क्योंकि हम कार्यभार पर काम करते It हैं। is so important to have assignment mentality. और ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास कार्यभार मानसिकता होनी चाहिए। Because all of us are working for our Father God, and all of the Father God's children are working on assignments. और हम सब पिता परमेश्वर की ही संतान हैं, उसके पुत्र पुत्रियां हैं, इसीलिए हमारे लिए ये होना चाहिए कि हम उसके दिए हुए कार्यभार पर ही काम करें। And you'll never be without a job. और आप कभी भी बिना नौकरी के नहीं If you रहेंगे। are assignment minded, you'll never be without a job. और यदि आप कार्यभार मानसिकता वाले हैं तो आप कभी भी बिना नौकरी के नहीं रहेंगे। If you are on assignment, that you will never retire. और यदि आप कार्यभार आपके पास है तो कभी भी आप रिटायर नहीं होंगे। Another mindset is celebration mindset. और अगली मानसिकता है उत्सव की मानसिकता। It's not a struggling mindset. It's a celebration mindset, because Jesus has already done everything for you. और ये एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति की मानसिकता नहीं है, लेकिन ये उत्साह करने वाले की मानसिकता है। और उत्साह क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक कार्य को पूरा कर दिया है। It's already done. और ये पहले से हो And if चुका it's है। already done, then our mindset must be a one of a celebrating mindset. और क्योंकि ये पहले से हो चुका है, क्योंकि वो हो चुका है, इसीलिए हमारा जो मन है उसे उत्साह में रखना जरूरी है। And finally, not a mindset of in Adam,
but a mindset of in Christ. और आदम में मैं हूं इसकी मानसिकता नहीं, लेकिन मैं मसीह में हूं इसकी मानसिकता होनी चाहिए। So these are some of the mindsets that we develop through our time on God's word. और ये वो सारी मानसिकताएं हैं जो हमें विकसित करनी है, और हम जब वचन में बने रहते हैं तो ये मानसिकताएं हम विकसित करते हैं। For example, quick example, और एक जल्दी से उदाहरण देता हूं। somebody is facing a problem और कोई एक व्यक्ति एक समस्या का सामना कर रहा है, and they only think what are the physical causes, और वो केवल यही सोच रहे हैं कि शारीरिक कारण क्या है, and they are wrong और वे गलत हैं। because there is something called spiritual world. और एक ऐसी दुनिया है जिसे हम आत्मिक दुनिया कहते हैं। The spiritual world governs the movements in the physical world. और ये जो आत्मिक दुनिया है, ये शारीरिक दुनिया में क्या चलन होगा उस चीज को निर्धारित करती है। But we must have spiritual mentality. और हमारे पास आत्मिक मानसिकता होनी चाहिए। Why is it happening in my life like this? और ये ऐसी चीजें मेरे जीवन में क्यों हो रही है? Is it my food problem? और क्या ये मेरे पैर की समस्या है? Is it my look? No, food problem. खाना. क्या ये मेरे खाने की समस्या है? Is it my look problem? क्या ये मेरे मैं जिस तरह दिखता हूँ उसकी समस्या है? Is it my color problem? क्या ये मेरा त्वचा के रंग की समस्या है? Is it my hair problem? क्या ये मेरे बाल की समस्या है? All physical solutions. और सारे शारीरिक समाधान। Because he is so physical minded, he is only looking for physical. There might be something wrong in the physical world. No. Every visible problem has an invisible spiritual root. और देखिए, और जो शारीरिक समस्याएं हैं उसका जो कारण है वो शारीरिक नहीं होगा, और हर एक जो समस्या है उसका जो मूल कारण होता है वो आत्मिक कारण ही होता है, उसकी जड़ें आत्मा के क्षेत्र में होती है। Adam and Eve ate the fruit. आदम और हवा ने फल खाया, And so husband and wife are discussing now, क्या करें अभी? We ate the fig. It's not apple, by the way, it's fig. और वो सेब नहीं था लेकिन वो अंजीर था, They ate the fig. और उन्होंने अंजीर खाया, And now they're thinking what to do. और वो कह रहे हैं कि अभी क्या करें। So Adam said, let's do like this. और आदम कहता है अभी ऐसा करते हैं, Because we ate from the fig tree, वहाँ के पत्ते उठाते हैं. Let's take leaf from there. क्योंकि हमने अंजीर का फल खाया है तो अंजीर के ही पत्ते उठाते And हैं, you make a suit और उसका एक कपड़ा बनाते हैं, for you and for me. और तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बनाते हैं। You know, the problem with that is, और उससे समस्या ये है, it's a physical solution. और ये तो एक शारीरिक समाधान है, But the problem is spiritual. लेकिन समस्या तो आत्मिक है। You cannot solve a spiritual problem by using fig clothes. और आप आत्मिक समस्या को अंजीर के पत्तों के कपड़े बनाकर सुलझा नहीं सकते। Be spiritual minded. आत्मिक मानसिकता बनिए। Every problem has a spiritual root. क्या है इसके पीछे आत्मिक जड़ क्या है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? Why am I struggling? What? Not the physical problem. Physical is the result. What is causing it in the spirit? What is the problem in the spirit that my physical life is like this? Ask yourself. और आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, ये जो भी समस्या है या जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हैं, इसका मूल जड़ किधर है? आत्मिक कौन सी ऐसी समस्या है आत्मा के क्षेत्र में जिसके वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है? And when you sit in the word, और जब भी आप वचन में बैठेंगे, the word will solve the spiritual problem. और ये वचन ही आपकी आत्मिक समस्या को समाधान करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So as we spend time on God's word, और जैसे हम परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे, your mindset will become spiritual. और आपका मन जो है वो आत्मिक होते जाएगा, You will be someone who becomes assignment minded. और आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जो कार्यभार मानसिकता वाला है। You are going to be someone who's going to be in a celebration mode because you are in Christ. और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो हमेशा उत्साह के मूड में रहता है। And prosperity will come to you from all directions. और ये जो समृद्धि है वो आपके पास हर एक दिशा से आएगी, It will come to you. और वो आपके पास आएगी। God will cause people to get up. और परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा। They will cause God. You don't have to call them. God will call them. और आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर उन्हें कॉल करेगा। And they will give you the prosperity that is yours. और वो आपको वो समृद्धि देकर जाएंगे
जो आपकी है। Hallelujah. हालेलुया। So please, let's work on our mindset. तो कृपया करके आओ हम अपनी मानसिकता पर काम करें। Let's work on our mindset. आइए हम अपनी मानसिकता पर Your काम करें। prosperity is limited to your mindset. Doesn't matter how many years we've been in faith. Your prosperity is limited to your mindset. Unless your mindset goes up, prosperity, we cannot handle a level of prosperity that our mind is not ready for. और देखिए हम उतना समृद्धि पर नहीं पहुंच सकते जितना हमारा मन विकसित नहीं है। तो आओ हम अपने मन को विकसित करें ताकि हम उस समृद्धि तक पहुंचे जहां पर हमें जाना है। और यदि हमारा मन विकसित नहीं है और वो समृद्धि हमें मिल जाती है तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। Finally, one last example. और आखिरी उदाहरण, 40 years Israelites are going around the mountain. और 40 साल इजरायली लोग उस पर्वत के इर्द गिर्द घूमते रहे। क्यों नहीं दे देते प्रभु, आप उनको कानान देते क्यों नहीं? क्यों घुमा रहे हैं आप दे दो ना, आपने रखा है, सब तैयार है तो दे दो ना, just give it. Why are you? Because if our mindset is not developed, you will destroy Canaan. यदि हमारी मानसिकता विकसित नहीं है तो आप कानान को नाश कर देंगे। You will destroy it. और आप कानान को नाश कर You देंगे। will make it another place exactly like Egypt. और आप उसे भी मिस्र के समान एक दूसरा स्थान बना देंगे। So God said, take one more round और परमेश्वर ने कहा एक और चक्कर लगाओ till your mind gets ready. तब जब तक तुम्हारा मन तैयार नहीं हो जाता। Then he checks, is your mind ready? और फिर वो चेक करता है क्या तुम्हारा मन तैयार It है। says it's not ready. Take one more वो round. कहता है नहीं है तैयार, एक और चक्कर लगाओ। ऐसे राउंड मारते मारते 40 साल राउंड मार दिया. But if your mindset is ready, यदि आपका मन तैयार है the things that have been waiting for you, brothers and sisters, और जो चीजें भाइयों और बहनों आपके लिए इंतजार कर रही है, it will be dropped in your lap. और वो आपके गोद में आ गिरेगी। Because now your mind is able to take care of it. क्योंकि अभी आपका मन उन चीजों को संभालने के लिए सक्षम है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for what we have heard today. पिता हम धन्यवाद करते हैं जो वचन हमने आज सुना। Help us work on our mindset. हमारी मदद करें ताकि हम अपनी मानसिकता पर काम कर सकें Destroy those worldly thinking patterns. और उन सारे संसारिक तरीके जो सोच विचार के हैं आप उन्हें तबाह कीजिए। The patterns that have been developed in our mind over the period of time. और इतने सालों से जो सोच विचार करने के तरीके हमारे मन में बन गए हैं आप उसे नाश कीजिए। By the power of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से destroy those thinking patterns. और उन सोचने की प्रणालियों को आप तबाह करें। Those ways of thinking. और जिस तरीके से हम सोचते हैं Those strongholds of the mind that hinder grace-based prosperity. और वो मन में जो गढ़ बने हुए हैं जो अनुग्रह आधारित समृद्धि को ग्रहण करने के लिए बाधा बनते हैं। Work on our mindset, Lord. और प्रभु हमारे मन के ऊपर कार्य कीजिए। Help us develop spiritual kingdom and heavenly mindset. और हमारी मदद कर ताकि हम आत्मिक राज्य का और स्वर्गीय मन विकसित करें। We thank you for your love. और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। We give you glory और हम आपको महिमा देते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन।